Welcome everyone to this class on globalization. Globalization is one of the most debated and important concept in contemporary political science and international relation. It is not just about economies, it influences politics, culture, environment and even our personal lives. Think about it. When you order something from Amazon, it may have been manufactured in China, shipped through Singapore, sold by a US company, and delivered to you in India. This simple act shows how deeply interconnected our world has become. In today's lecture, we will go step by step, understanding what globalization means, its historical roots, different dimensions, the opportunities and challenges it creates, and finally, how it has impacted India. We will also look at how scholars debate globalization, whether it is real, exaggerated, or something in between. वैश्वीकरण ने सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था को ही नहीं बल्कि हमारी राजनीति, हमारी संस्कृति और हमारे समाज को भी प्रभावित किया है. So the first slide is about introduction, जिसमें बताया गया है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो एक प्रोसेस होती है ऑफ इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस अमंग कंट्रीज, जिसमें ट्रेड को इन्वॉल्व किया जाता है, टेक्नोलॉजी को, कल्चर को और गवर्नेंस को इन्वॉल्व किया जाता है. तो इसके एग्जांपल्स में व्हाट्सएप, मैकडोनल्ड्स के प्रोडक्ट्स or food what which we consume, like and other brands and internet as well. So globalization is broadly defined as the process of increasing interconnectedness and interdependence among countries, societies and people. This interconnectedness happens in multiple ways: through trade, investment, and ideas, migration, and internet, and even shared problems like climate change and pandemics. For example, let's look at your smartphone. The design might be from the US, the hardware from South Korea, the chips from Taiwan, the assembly in China, and the final sale in India. One product reflects the contribution of five or six countries. So, globalization reduces the boundaries that separate countries. It makes the world function like one big community. That's why people often use the term global village. जो आपने सुना भी होगा कि काफ़ी बार लोग इसको अ, बोलते रहते हैं कि हमारा जो विश्व है वो आज एक वैश्विक गांव की तरह बन गया है, यानी ग्लोबल विलेज में ट्रांसफॉर्म हो गया है. एंड द नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें जो एंशियंट पीरियड है उसके बारे में बताया है, कॉलोनियल इरा के टाइम में और मॉडर्न जो इरा है उसमें किस तरीके से ये इवॉल्व हुआ है. एंशियंट देखिए, some people think globalization is new, but it is actually very old. Let's briefly look at three stages which I just told you: ancient, colonial era and modern time. एंशियंट ग्लोबलाइजेशन में जो ट्रेड रूट होता था, लाइक द सिल्क रोड, connected Asia, the Middle East, and Europe. Along with goods, people exchanged ideas, religions, and technologies. For example, Buddhism जो स्प्रेड हुआ इंडिया से टू ईस्ट एशिया तक, एंड स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया ट्रेवल टू यूरोप, यानी हमारे यहाँ के जो मसाले हैं उनका व्यापार पुराने टाइम में होता था यूरोपियन कंट्रीज़ में. उसके बाद जो कॉलोनियल इरा है ग्लोबलाइजेशन का, उसमें फ्रॉम द 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स जो यूरोपियन पावर सी लाइक ब्रिटेन, स्पेन एंड पोर्तुगल expanded globally. Colonization led to the large scale transfer of raw materials, goods, and even human labor in the form of slavery and indentured workers. The Industrial Revolution further expanded trade networks. And in modern globalization, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो ऑर्गेनाइजेशन थे लाइक यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, इनको क्रिएट किया गया था
ग्लोबल इश्यूज को मैनेज करने के लिए, बट द रियल टर्निंग पॉइंट वाज द 1990s व्हेन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए इन कंट्रीज लाइक इंडिया, जिन्होंने मार्केट्स को वर्ल्ड वाइड ओपन किया। द इंटरनेट एंड मॉडर्न ट्रांसपोर्ट मेड ग्लोबलाइजेशन फास्टर एंड डीपर। इस तरह हम देखते हैं कि जो वैश्वीकरण है वो नया नहीं है, बल्कि इसके अलग अलग चरण रहे हैं, यानी अलग अलग स्टेजेस से होता हुआ ये आज अपने आधुनिक स्वरूप में है। फिर बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन की, जिसमें इसके इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल इन डायमेंशंस को डिस्कस किया गया है। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की, जिसमें ट्रेड, एमएनसीज और आउटसोर्सिंग इंक्लूडेड है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, कैपिटल एंड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ये इंक्लूड रहते हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल, अमेज़न, टाटा एंड इन्फोसिस operate across borders. Production chains are spread worldwide. This is called global value chains. When it comes to political globalization, तो इसमें जो नेशन स्टेट्स हैं ये आइसोलेशन में ज़्यादा एक्ट नहीं कर सकते। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है लाइक द यूएन, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, और जो रीजनल बॉडीज़ है लाइक यूरोपियन यूनियन और जो आसियान है, ये इन्फ्लुएंस करते हैं डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को। फॉर इंस्टांस डब्ल्यूटीओ के जो भी रूल्स है ये अफेक्ट करते हैं इंडिया के एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ को। उसके बाद बारी आती है कल्चरल ग्लोबलाइजेशन की, जिसमें फूड, फ़िल्म, म्यूज़िक और फ़ैशन का एक्सचेंज हम देखने को मिलते हैं। बॉलीवुड की जो मूवीज़ है वो पॉपुलर है अफ़्रीका में, व्हाइल जो के-पॉप और जो हॉलीवुड है ये डोमिनेट करते हैं इंडिया पे। बट दिस ऑल्सो रेज़ेस द फ़ियर ऑफ कल्चरल होमोजेनाइज़ेशन। एंड द नेक्स्ट इज़ टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन। टेक्नोलॉजिकल में इंटरनेट, एआई और ट्रांसपोर्ट ये सब हमें देखने को मिलते हैं। जो इंटरनेट है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, कुछ सैटेलाइट्स और जो हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट्स हैं, इन्होंने रिड्यूस की है डिस्टेंस देशों के बीच में। और जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं लाइक फ़ेसबुक, ट्विटर स्प्रेड इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली अक्रॉस द ग्लोब। यानी आज हम किसी विश्व के किसी भी कोने में बैठे हैं, और अगर हम दूसरे कोने में बात करना चाहते हैं तो वो विदिन सेकंड्स में हम ईज़िली कर पाते हैं। उसके बाद आता है एनवायरमेंटल ग्लोबलाइजेशन। इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन एंड पैंडेमिक्स, एग्जाम्पल कोविड-19 का हमारे सामने है। ये दिखाते हैं कि हाउ वन नेशंस एक्शंस अफेक्ट एवरीवन। Pollution in one country can harm neighboring countries, and global cooperation here become very necessary। यानी जो वैश्वीकरण है इसने जीवन के हर पहलू को छुआ है, अर्थव्यवस्था से लेकर पर्यावरण तक। कोई भी फील्ड आज इससे अछूता नहीं है। उसके बाद आती है नेक्स्ट स्लाइड अबाउट एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब्स देखने को मिलती है, एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजीज हम देखते हैं, कल्चरल एक्सचेंज हम पाते हैं, बेटर कनेक्टिविटी एंड ग्लोबल अवेयरनेस हमें देखने को मिलती है। तो जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की और जॉब्स की, तो कंटिन्यूइंग गेट एक्सेस टू फॉरेन मार्केट्स, इंडियाज आईटी and BPO sectors employ lakhs of people because of globalization. And when it comes to access of technology and knowledge, इसमें नई नई मेडिसिन्स, मोबाइल फ़ोन्स एंड एग्रीकल्चरल टेक्निक्स स्प्रेड रैपिडली। फॉर एग्जांपल कोविड वैक्सीन जिनको डेवलप किया गया था और डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ग्लोबली, यानी कि अगर किसी एक कंट्री के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया था या डेवलप किया गया था तो उसको ग्लोबल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा था, यानी किस तरीके से वो ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट की गई थी वेरियस कंट्रीज़ के बीच। कल्चरल एक्सचेंज भी इसमें देखने को मिलता है, जिसमें हमारा जो फूड है, हमारा म्यूज़िक है, हमारा आर्ट है, हमारा ट्रेडिशन है, इनको शेयर किया जाता है। इंडियन योगा इज़ नाउ प्रैक्टिस्ड वर्ल्ड वाइड, while international cushions are common in India. Connectivity and awareness
The internet and media connect us to global debates on climate, gender equality, and democracy. In short, जो globalization है has made knowledge and opportunities more accessible. यानी वैश्वीकरण के कारण हमें रोजगार, तकनीक और जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है. Now move to disadvantages of globalization. However, globalization is not equal for all. It also brings challenges like loss of local culture, जिसमें जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज होती है, लैंग्वेज और जो कस्टम्स होते हैं ये डिक्लाइन हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल लोकल हैंडीक्राफ्ट्स स्ट्रगल अगेंस्ट मास प्रोड्यूस्ड ग्लोबल प्रोडक्ट्स. और जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है जिसमें रिच कंट्रीज़ और जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं इनको ज़्यादा बेनिफिट होता है वाइल जो पुअर नेशंस हैं वो डिपेंडेंट रह जाते हैं. फिर जो एक्सप्लॉयटेशन रहता है लेबर का वो इसमें देखने को मिलता है. मैनी वर्कर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज वर्क इन पुअर कंडीशन फॉर लो वेजेस टू प्रोड्यूस चीप गुड्स फॉर ग्लोबल मार्केट्स. एंड एनवायरमेंटल डैमेज में जो एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन है और जो ग्लोबल ट्रांसपोर्ट है वो पॉल्यूशन को इंक्रीज़ करता है और कार्बन एमिशन को भी इंक्रीज़ करता दिखाई देता है, जिसने हमारे एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है. फिर बात आती है कि ये सॉवरेंटी को भी वीकन करता है. यानी जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स है या फिर जो पावरफुल कंट्रीज है समटाइम्स डिक्टेट टर्म्स टू वीकर स्टेट्स. Thus, globalization is not always fair. It produces winners and losers. फिर बात आती है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिया. तो in India, globalization became central after the 1991 reforms. Let's look at its effect. Economic. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड. यानी कि अगर हम इकोनॉमिक एरिया की अगर बात करें तो एफडीआई इंक्रीज़ हुआ है. फॉरेन बैंक्स और जो कंपनीज़ है ये हमारे देश में एंटर हुई है. एंड इंडियन कंपनीज गेन एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स और यहाँ की कंपनी को भी ग्लोबल मार्केट्स में एंट्री मिली है. आईटी एंड आउटसोर्सिंग मेड इंडिया अ हब फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज. तो ये एक टर्निंग पॉइंट था जो 1991 में इंडिया में आया था जिसके कारण हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देखने को मिले थे. फिर अगर बात करें सोशल एंड कल्चरल पॉइंट्स की तो जो ग्लोबल ब्रांड है लाइक केएफसी, अमेजोन एंड नेटफ्लिक्स changed consumer habits. At the same time, Indian culture like yoga, बॉलीवुड, आयुर्वेदा ये भी स्प्रेड हुए हैं ग्लोबली. फिर बात करें पॉलिटिकल फील्ड की तो जो इंडिया है became an important voice in global governance, especially in forum like WTO, BRICS and G20. चैलेंजेस भी काफ़ी देखने को मिले हैं जैसे जो फार्मर्स हैं इनको प्रेशर फेस करना पड़ता है चीप इम्पोर्ट से. स्मॉल इंडस्ट्रीज स्ट्रगल अगेंस्ट एमएनसीज एंड जो कल्चरल होमोजेनाइजेशन है वो भी एक बड़ा कंसर्न है. दस जो ग्लोबलाइजेशन है इंडिया में इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड ब्रिंगिंग बोथ प्रोग्रेस एंड प्रॉब्लम्स. यानी इसने प्रॉब्लम्स भी क्रिएट की हैं और प्रोग्रेस भी ये लेकर आया है. यानी वैश्वीकरण ने प्रकृति के साथ साथ नई चुनौतियाँ भी भारत में पैदा की हैं. ज़्यादा जो चुनौतियाँ हैं ये पुअर सेक्शन के लोगों को फेस करने को मिली है. फिर इसमें कुछ डिबेट्स हैं. अ, जैसे जो ग्लोबलाइजेशन है इज़ नॉट इंटरप्रेटेड इन द सेम वे बाय ऑल स्कॉलर्स. देयर आर थ्री मेन डिबेट्स लाइक हाइपर ग्लोबलिस्ट ये आर्ग्यू करते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो रियल है और पावरफुल है. Nation states are losing importance and thus world is turning into one single global economy and society. यानी कि one global village. Skeptics बोलते हैं कि जो नेशन स्टेट्स है वो स्टिल पावरफुल है. ये आर्ग्यू करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज एग्जैगरेटेड.
Trade and cooperation have existed for centuries, and nation states are still the most powerful actors in world politics. और जो ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट हैं ये बोलते हैं कि बीच का रास्ता सही है, यानी दे टेक अ मिडल पाथ. They say globalization is real, but it is complex and uneven. It doesn't erase nation states, but it transforms their roles. So, globalization is not a single truth. It depends on how we interpret its changes. तो जो वैश्वीकरण है या जो ग्लोबलाइजेशन है, इस पर जो स्कॉलर्स हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है. कुछ इसे ताकतवर मानते हैं और कुछ इसे बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं और कुछ इसको कमज़ोर मानते हैं. अब नाउ कम टू कंक्लूजन. टू कंक्लूड ग्लोबलाइजेशन to conclude, globalization is a process that has both positive and negative consequences. यानी इसके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी है और चैलेंजेस भी देखने को मिलती हैं. इट कनेक्ट्स इकोनॉमीज, सोसाइटीज एंड कल्चर्स, मेकिंग द वर्ल्ड अ ग्लोबल विलेज. एट द सेम टाइम it creates inequality, cultural loss, and environmental problems. um, affect how we live, work and think. और उसमें जो की क्वेश्चन है वो ये कि हाउ डू वी बैलेंस बेनिफिट्स विद रिस्क. For India, globalization brought economic growth and international recognition, but also new challenges like farmer crisis, labor exploitation, and cultural pressure. ये भी देखने को मिला है. Therefore, the question is not whether globalization is good or bad, but how it can be managed. जो की क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि हम कैसे इसको इस मतलब जो भी ग्लोबलाइजेशन है कि ना तो वो अच्छा है ना वो बुरा है. हमें इसको बैलेंस में लेके चलना पड़ेगा ताकि हम इसके बेनिफिट्स को उठा सकें, ज़्यादा बेनिफिट्स हम इसके ले सकें. जैसा भी आई जस्ट टेल कि the main question is not whether globalization is good or bad, but how it can be managed. We need policies that maximize benefits while reducing harms. तो हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी जिससे हम मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकें और जो हार्म है, जो भी चैलेंजेस है या फिर जो डिसएडवांटेज है हम उनको रिड्यूस कर सकें. दिस मीन्स प्रमोटिंग फेयर ट्रेड, protecting local cultures, ensuring environmental sustainability and strengthening democratic accountability. यानी वैश्वीकरण अवसर और जो चुनौतियां हैं उन दोनों का ही मिश्रण है. ज़रूरत है तो संतुलन बनाने की. थैंक यू very thank you so much for joining the class on globalization. I hope you now have a clear understanding of its meaning, history, dimensions, advantage, disadvantages, debates, and its impact on India. If you like this lecture, please like, share, and subscribe for more political science content. Stay tuned for the next class. Thank you.